पतित पावन तुम्हारे कहना प्रिय स्वामी महाराज शुभागमन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम सभी राधा माधव नामट्टा की तरफ से महाराज आपका स्वागत करते हैं। तो मैंने आपका ऑनलाइन क्लास सुना था लंदन से,
तो जो दुबई से जो एक कश्मीरी माता जी थी उन्होंने मेरे को कनेक्ट कराया था। तो कोरोना के समय 3-4 क्लास आपका मैंने सुना था, तो बहुत ही सुंदर। और महाराज का जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था इसमें आपको बहुत, तो सभी के लिए मैं महाराज थोड़ा 2 मिनट इंट्रोडक्शन कर लेता। हरे कृष्णा। तो वी वेलकम हिज होलीनेस वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज, born in a very Brahmana family on 1st August 1944 in the town of Kadod, Gujarat, India. And then followed his early life spent in Gujarat. Then his family moved to East Africa and the mid-50s, and afterwards he migrated to USA in September 1971. Maharaj's mother, who is also an initiated devotee, recalls his traditional Brahminical initiation at the age of 7 when he received the Brahmana thread and the Danda staff. She has also photos of him taken at that time, which she plans to share with us when she remembers to bring it. Vedvyas Maharaj himself recollects that he always more interested. He was more interested in spiritual matters and welfare of the people than in any other business. As a young adult, he made a daily practice of reading Bhagavad Gita shlokas, and he studied the Sanskrit language during his high school years. Maharaj in 1976 became involved with the local temple in New York in liaising with the local Indian community and the temple, and in August managed to hear the conversation of Srila Prabhupada with life members. The following day was Rath Yatra. At that time, Srila Prabhupada was very sick and protected by closest disciples and servants, so the opportunity for personal interaction was not there. But he got his darshan while Srila Prabhupada was getting on to the Sri Subhadra cart. Srila Prabhupada was able to give a short lecture during the Rath Yatra, which was attended by the Maharaj. Maharaj continued to have the association of Srila Prabhupada. Disciples instilled in him the enthusiasm for his divine grace, Krishna philosophy. He took shelter of Srila Prabhupada and received the initial beads and spiritual name sent from Srila Prabhupada, who was due to his poor health was unable to personally attend the initiation ceremony. Maharaj recalls that at his times his preaching mood was very strong and inspired two of his close friends and following life members to be initiated at the same time. He would also take the Bhagavad Gita with him to his research lab and preach to his co-workers, particularly against the cruelty of the animals. Maharaj continued to have a lot of interaction with the association of his god brothers, including Tamal Krishna Goswami Maharaj, Bhakti Swami Maharaj, and others. In 1978, Maharaj began a project to install Srinath Gopal deity in New York for the first time in the Western world in response to the desires of the Gujarat community. So महाराज का तो बहुत लंबा ये है, तो हम लोग महाराज को हमारे यात्रा लीडर हिज ग्रेस गौरूप नरसिम्हा प्रभु और सिद्ध गौरांग प्रभु के तरफ से हम लोग महाराज को एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर हम लोग प्रेम से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज कुछ त्रुटि होगा तो क्षमा करना। English. Anyone. Anything? Everybody knows English. Yeah, but better is Hindi. हिंदी में ही करें। हिंदी। जोरे बोलें। करता। जय राधा माधव कुंज
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare
His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Deputy Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Shapada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stuttar Shata Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnavind ki Jai. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू असेंबल हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 7वां और श्लोक संख्या 13 है। लेकिन 12वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा ये सारे 3 गुण सत्व गुण रजोगुण और तम तीनों प्रकट होते हैं। चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान 3 गुणों से स्वतंत्र है, हम लोग 3 गुणों से परतंत्र हैं। हम बंदे हैं, भगवान 3 गुणों से भगवान ने पैदा किए हैं, फिर भी भगवान उन 3 गुणों में नहीं रहते। तो अभी कहते हैं कि देखो हमारी क्या दशा है। आज का श्लोक त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किसी के पास 7.13 बोलो जोर से। हाँ। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः इभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति माम् एभ्यः परम् अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयी भावैः एवि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति माम एव परमव्ययम्। माताजी
त्रिविगुणमयि भावे देवी सर्वमिदं जगत् देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानन्ति मोहितं न विजानाति मामेव परमभयम् त्रिविगुणमये भावे त्रिविगुणमयि भावे देवी सर्वम् इदं जगत् देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मोहितं न विजानाति मामेव परममव्ययम् मामेव परमभयम्। त्रिभिः त्रिभिः तीन गुणमयी गुणों से युक्त भावैः भावों के द्वारा ये भी इन सर्वं संपूर्ण इदं यह जगत ब्रह्मांड मोहितम मोहग्रस्त न अभिजानाति नहीं जानता मां मुझको येभ्यः इनसे परम अव्ययम् अव्यय या सनातन। अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। सारा संसार तीन गुणों से मोहित है। जो इस प्रकार से तीन गुणों द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार एक विशेष मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वो ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वो वैश्य कहलाते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधि स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है तो हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और वे ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी हैं तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा रखी की जाए जो तमोगुणी है, रजोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह भगवान कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। आप सभी कृष्ण भावना में स्थित हो अभी तो,
यानी कि यहाँ मुक्ति है, हरि नहीं तो सब पार जाओगे गुलामगिरी है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदानम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदापद्मं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीकृष्णांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशाकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनचारि देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण की भक्ति इन तीनों गुणों से परे होती, और तीनों गुणों से परे होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ भक्ति पाने के लिए ही नहीं, लेकिन तीनों गुणों से जब परे होते हैं तो अपना मूल स्वरूप भी दर्शन होता है कि हम कौन है। जैसे भगवान तीन गुणों से परे होते हैं, आत्मा की जिम्मेदारी है वो भी तीन गुणों से परे हो। हरि बोल। लेकिन ये सारी दुनिया विरोधाभासी दुनिया यानी कि द्वंद्व वाली है। द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सिर्फ इच्छा और द्वेष ये दोनों ही के कारण हम विरोधाभासी दुनिया में पड़े हैं। कोई भी अपवाद नहीं है यहाँ कि भगवान के अवतार के रूप में आया। तो सारी दुनिया मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमम व्ययम, ये मोह में कैसे पड़े। द्वंद्व मोहे न भारत, द्वंद्व हमेशा विरोधाभासी, जब दो फैक्टर होते हैं विरोधाभासी एक दूसरे से विरोध करने वाले तो द्वंद्व होता है, फाइटिंग होती है तो भी द्वंद्व कहलाता है। कौरव और पांडव में युद्ध बना तो द्वंद्व हुआ ना। एक का अभिप्राय दूसरा है, दूसरे का अभिप्राय दूसरा, तो दोनों में मन मिलाव नहीं है तो द्वंद्व होगा ही। तो सारी दुनिया द्वंद्व में फंसी है। ये द्वंद्व में एकता कब है, द्वंद्व कब निकलेगा? एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ माया है। एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ स्थूल शरीर है। दोनों में विरोधाभास है। जीव और माया की जंजाल से छूटना क्यों चाहता है? क्योंकि वो विरोधाभासी स्वभाव वाला है। दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। जो समझदारी से करता है तो वो भगवान का हितैषी बनेगा, भगवान की सराहना कर सकता है। क्योंकि भगवान बता देते हैं कि मेरे से ही ये तीन गुण पैदा हुए हैं, लेकिन मैं उसमें फंसता नहीं।
हम लोग कैसे फंसे? हाँ? भगवान कहते हैं हम जानते हैं कि ये जो दो कारण हैं, इच्छा और द्वेष, उसके कारण फंसना पड़ता है। लेकिन वो कहाँ हुई? भगवान कहते तुम मेरे साथ था, मेरी सुरक्षा में था, लेकिन मेरे से ही तूने ईर्ष्या पैदा की। तो तुम मेरा अंश है, गुणवत्ता में समान है, लेकिन तेरे में कोई शक्ति नहीं। जब तक मैं शक्ति का संचार नहीं करता तुम्हें, तुम तो सिर्फ एक चिंगारी जो बुझ जाती है ना, तो बुझी हुई चिंगारी है। परमात्मा के रूप में तेरी पास पहुंचता हूं, तुझे फिर से जगाता हूं, फिर भी तो देह के अंदर में ऐसा फंसा है कि समझता नहीं, 3 गुणों में ही फंसा रहता है। भौतिक दुनिया में 3 गुण और त्रिगुणात्मक भाव से ही ये भगवान की जो बहिरंग शक्ति है माया, वो 3 गुणों द्वारा पैदा हुई है, वो ही संचालन करेगी। छूट तो सही, जेल खाना बनाया है और हम समझ रहे हैं कि हम मुक्त हैं। यहाँ भी तो हम जेल खाना में ही तो आए हैं ना, मुक्त रूप से थोड़े व्यवहार कर सकते। मैं तो सोचता था आप लोग को इतना आवाज करने जाता है कहाँ। लेकिन कई सालों से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन देखना वो समझ रहा है कि वो लोग मुक्त है और हम लोग चोर डाकू की तरह हमें छुपा लेना चाहिए। भौतिक जंजाल में तो कोई मुक्त नहीं, मुक्त होने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि मुक्त होने का तरीका बताता है। सभी बिना अपवाद ये द्वंद्व यानी कि इच्छा और द्वेष के द्वारा जो पैदा हुआ है, और मेरे साथ द्वेष होने के कारण अलग इच्छा होती है। मेरे साथ तूने द्वेष किया है, इसीलिए तू अपने आप को भोगी मानता है। भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो अशांत रहेगा। कौन शांत है यहाँ? अभी कभी शांत हो, बाहर जाओ। मुझे भी ये चोला पहन कर आना पड़ा। अशांत दुनिया है, चोरी चुपके से काम करो। तो लेकिन भगवान का संदेश जब हम हृदयंगम करते हैं, सिर्फ कंठस्थ करना आवश्यक नहीं बताया, हृदयंगम करना, हृदय में उतारना चाहिए, अपनी चेतना में लाना चाहिए, जिसके द्वारा हमेशा हम ये क्यों कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके छूटो और भागो। इस जेल खाना में हमेशा सबड़ने के लिए आए नहीं है, जल्दी से जल्दी। कहीं तो हाँ प्रचार करते पड़े रहो वो ठीक है, लेकिन मुक्त होने की आवश्यकता होती है। हम ऐसा नहीं कि आपकी जॉब से हटाने आए हैं, लेकिन चालासी के अपने हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो हमें चालाकी बताए, चालाकी कैसे करें। तब भगवान स्वयं ऐसे व्यवहार करते हैं कि इनका व्यवहार जानकर हमें सीखने की आवश्यकता होती है। वो जो करते हैं उसका इमिटेशन नहीं, लेकिन सीखने की तो आवश्यकता होती है। ये वो कहते कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रियोऽसि में, मैं सबके प्रति समान हूं, समोहम। न द्वेष्टि, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न प्रिय, किसी को तरफदारी भी नहीं करता। पर ये भजंती तो माम भक्त्या, जो मेरा भक्त है मुझे भजता है,
ते अपि तेषु चास्वहम्, उसके साथ में हमेशा पक्षपात करूंगा। भक्तों के पक्षपात के लिए भगवान आते हैं। देवता और दानव में जब युद्ध हुआ तो भगवान ने कहा, ए भैया लड़ाई मत करो, संधि कर दो। तो संधि करने में कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। संधि करना देवता और दानव में पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि दानवों का स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं गुनाह निकालते रहते हैं, और द्वेष होने के कारण दानव लोग कुछ न कुछ ऐसी तरकीब करते कि देवताओं को कैसे परास्त करें, कैसे परेशान करें। तो भगवान ने कहा, देखो आप दोनों संधि करो, और समुद्र मंथन का हम प्रोग्राम आयोजित करते हैं। शक्ति तो अपार है आप दोनों के पास, लेकिन भौतिक शक्ति, शक्ति से काम लेना कौन से गुण का काम है? रजोगुण। देवताओं में भी रजोगुण है और दानवों में भी रजोगुण है। देवता में जब इंद्र जैसा रजोगुणी होता है तो कितना परेशान कर देता है सबको, वो कितना व्यभिचारी जीवन जीता हो, लेकिन देवता है, उसको भी अकल ठिकाने के लिए ब्रह्मा जैसे भी उसे शिक्षा दे सकते हैं, और देते हैं। पर लेकिन आप दोनों संधि करो। हम भी कहते हैं कि आप लोग यहाँ मालिक हो, इतना पैसा है, हम गरीब देश से आए, चलो संधि करो, कुछ हम लोग भी यहाँ आपको मदद करेंगे। लेकिन वो तो काम चलाव ही होता है। यहाँ हमेशा के लिए स्वप्न में कोई हवाई किला बांध के आया है? नहीं। क्योंकि ये स्थल भी, जो शरीर है ना, वो भी पराया है, वो खाली मकान है, किराया तो देना ही पड़ता है माया को। और उसी तरह ये देश भी पराया है, मालिक की अलग लोगों की, हमें तो अपना काम नहीं। लेकिन मुक्त रहना है। मुक्त कैसे रहोगे? न द्वेष्टि न प्रिय। हम न तो आपका बखान करेंगे, न आपसे कोई विरोध करेंगे। हमारा काम हो जाए, जहाँ पेट पालन इत्यादि करना है, परिवार का नियोजन करना है, सब कुछ तो यहाँ यदि कर पाते हैं तो करो। लेकिन ये भजंती, भगवान तो ये चाहते हैं कि चलो द्वेष नहीं करते हैं, वो न तो प्रियता भी नहीं रखनी चाहिए। दोनों चीज आवश्यक है। यह अपना धर्म बहुत चालाकी सिखाता है। यहाँ के मत बन जाइए, कोई बनने भी नहीं देगा। हमें तो अपनी औकात में रहना है। धरतीकंप हो रहा है। भगवान कहते हैं कि ये भजंती तो मान भक्त्या, मेरे भक्त हमेशा मेरा भजन क्यों करते रहते हैं? क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। ते अपि तेषु चास्वहम्, वो भी मेरे हृदय में ऐसे बैठे हैं कि मैं इनको भूल नहीं पाता। तो इतनी आश्वस्तता हमें ये संग में सीखने को मिलती है। क्या निश्चित रहिए कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा कार्य है जो जीव को लागू होता है, शरीर को शायद लागू ना हो। जीव को तो लागू होना ही चाहिए। जीव ये माया में आके लपेटे तो उसका ही नुकसान है। ये शरीर में आकर शरीर संबंधी ही व्यवहार करा करें तो उसमें उसका नुकसान है। आत्मा संबंधी हमें इस शरीर के द्वारा सारा व्यवहार करना है। अपनी आत्मा को हमेशा मुक्त रखने के लिए जो उपाय बताया है
हाँ, वो भक्ति है। हाँ, नहीं तो बिना अपवाद एक एक व्यक्ति तीन गुणों द्वारा आवृत, तो भगवान को तीन गुणों भी बनाने की आवश्यकता हो गई। आप देखोगे कि भगवान के तीन गुण हैं, वो दैवी गुण कहलाते हैं, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। तो उसके विपरीत भौतिक गुण, सत का सत्व हुआ, चित्त का रजोगुण हुआ, और आनंद का दुख तमोगुण। कहते हैं शास्त्र वेद में भी बताया, स इक्षति स ईमान असृजत। भगवान ने तो सिर्फ दृष्टिपात करके ही ये भौतिक सृष्टि में जीव को भी उतारे, और इनके जो तीन गुण जो है आध्यात्मिक गुण, सत्य, चित्त और आनंद, उसका परावर्तित गुण हुआ, परावर्तन हुआ। तो वो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में आए। अभी जो जीव भगवान का अंश है, वो भी इनकी दृष्टि से अंदर गया। त्रिगुणात्मक माया और जीव का ये जो बंडल है, यानी कि तो उसे महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व ये महान तत्व है। भौतिकता का सबसे बड़ा महान तत्व जीव, जब जो आध्यात्मिक है जीव, फिर भी एक त्रिगुणात्मक भाव में माया के गर्भ में आता है। भगवान ने तो दृष्टिपात ही किया, बातें तो वो सो गए, पर लेकिन ये दृष्टिपात में दो चीज आई। इनके जो सच्चिदानंद गुण का परावर्तन हुआ तो सत्व, रज और तमो में हो, और जीव भी, हर एक जीव भगवान की दृष्टि का अंश बताते हैं, तो वो तो आध्यात्मिक है। तो वो त्रिगुणात्मक माया में फंसता है, गिरा। भगवान के नजर से, भगवान का न होने के कारण जीव गिरता है। जीव गिरता है। ये बाइबल वाले भी कहते हैं, मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड बट ही हैज बीन फॉलन फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की नजर से ही गिरा है, क्योंकि भगवान से विरुद्ध इच्छा करते हैं। भगवान कहते देने वाला मैं भी हूं। अरे तो प्रेम कर, प्रेम के बजाय मुझे हेट क्यों करे, मेरी ईर्ष्या क्यों करे? तो इच्छा द्वेष, यदि अलग इच्छा हुई तो समझो द्वेष होने के कारण ही होती है। हमें प्रभुपाद जी की इच्छा क्यों वहन करनी पड़ती है? यदि करोगे तो द्वेष नहीं है, करोगे नहीं तो द्वेष है। प्रभुपाद जी वहां भी छूट देते हैं कि हमें सबको अपने अपने सोच समझ के अनुसार अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सब अलग विचार मेरी प्रियता के लिए उपयोग या भगवान की भक्ति में लगाएं तो सोने में सुहागा जैसी बात है। द्वेष छोड़ो, भगवान की सेवा या गुरु के आदेश के अनुसार आप सेवा करो तो अवश्य एकता बनी रहेगी। विविधता में एकता कहते हैं। या हर साल जीबीसी मीटिंग में ये प्रश्न चर्चाता रहता है। इतनी सारी विविधता पड़ी है, लेकिन एकता कहाँ? एकता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सब एक तो हो ही नहीं जा सकते। खिचड़ी ही पकेगी, खिचड़ी में एकता नहीं होती। दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, घी भी कहीं पड़ा होता है, और छौंक लगाए तो और उपरांत। तो ये सारा समाज, ये भौतिकता का समाज खिचड़ी जैसा खड़बड़ा है। इसमें से घी निकालना, यानी कि नेक्टर निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप भक्ति करोगे तो निकलेगा।
इस्कॉन में सबसे अच्छा प्रसाद खिचड़ी कहलाता है। मायापुर की खिचड़ी तो बहुत प्रख्यात होती है। और कुछ खाओ तो ये तो बाहर भी मिलता है, लेकिन खिचड़ी के लिए कोई रेस्टोरेंट बना है? कभी नहीं बनता है। लेकिन मायापुर की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है, सब कुछ होता है इसमें, विविधता बहुत होती है, सब्जियां होती है, काजू भी होता है। और अच्छी तरह से पकाते हैं, प्रेम से पकाते हैं, सारी दुनिया को खिला सकते हैं। ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने चालू करवाया तो खिचड़ी से ही चालू करा। खिचड़ी के अलावा और कुछ देने की आवश्यकता नहीं। तो फूड फॉर लाइफ चालू हुआ। किसी ने कहा कि हम तो इतने प्रख्यात बन जाएंगे जब इतना पैसा है, चलो मिड डे मील शुरू करो। इसमें खिचड़ी नहीं बनाते, इसमें रोटी सब्जी इत्यादि अलग होता। तो किसने कहा? प्रभुपाद ने रोटी सब्जी खिलाओ ऐसा नहीं कहा, खिचड़ी खिलाओ। तो क्योंकि खिचड़ी इतनी पौष्टिक होती है, सब कुछ अंदर से मिल जाता है। तीनों दिन अलग अलग बनाओगे, अलग अलग विविधता कर, तो दुनिया को तो कम ही पड़ेगा। जैसे सरकार ने मिड डे मील चालू किया, प्रसाद बनाना और विविधता, रोटी की बड़ी बड़ी मशीन ले आए, सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज किया, करोड़ों की संख्या में प्रसाद का वितरण होने लगा। शायद प्रसाद में छिपकलियां चूहा भी घुस जावे, थोड़ी गाली खा लेते हैं, लेकिन देना बंद नहीं होगा। गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो खिचड़ी खिलाते रहते हैं, ये तो नहीं, इसमें क्या। तो किसी के सुझाव इनका एक एक अंडा भी दे दो तो कहा गवर्नमेंट ने। हमारे मधु पंडित ने क्या कहा पता है? हम पैसे दे देंगे, अंडा आप खिलाओ। यानी कि इनडायरेक्ट हम भी इम्प्लीकेट हो जाए। प्रभुपाद जी का जो सारा लक्ष्य है भक्त और भक्ति बनाने के लिए, जो प्रोग्राम में आप भक्त नहीं बना सकते किसी को, तो वो करने की आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद ने कहा कि 10 माइल की परिधि में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। उनको बुलाओ मंदिर में, मंदिर को वहां पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, इनको खींच लाओ और प्रसाद खिलाओ, भूखे नहीं जाना चाहिए। तो प्रचार का काम होता है। ऐसे नहीं इंडस्ट्रियल किचन बनाकर। तो हमारे गुरुपाय है जयदेव स्वामी, इधर भी आते हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है फूड फॉर डेथ, फूड फॉर डेथ, स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ के लिए ये प्रसाद वितरण का काम नहीं है। आप प्रसाद के रूप में मानते हो, लेकिन प्रसाद है सही। बहुत सारे बाहर लोगों इनको इनवाइट करते हैं, इनको नौकरी देते हैं और खाना पकाते हैं, लेकिन भगवान की प्रीति और गुरु की प्रीति कहाँ है? सारा प्रोग्राम फूड फॉर डेथ हो जाता है, फूड फॉर लाइफ नहीं होता है, फूड फॉर डेथ हो जाता है। जो स्पिरिचुअल डेथ देता है, ऐसा खाना खिलाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये रजोगुणी कर्तव्य है। अरे भाई, इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनी है बेंगलोर में, तो बहुत सारा पैसा है और सरकार 100% टैक्स रिबेट देगी, तो इनको तो कोई गान, चलो आओ लाओ पैसे लाओ, हम करेंगे काम। अपनी वाह वाह होनी चाहिए। इस्कॉन वाह वाह के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं बनाया है, भक्ति फैलाने के लिए। 700 फुट ऊंचा मंदिर बना रहा है वाह वाह के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी का तो प्रोग्राम है ही नहीं।
देखो इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने चैलेंज दिया, मायापुर आकर कह रहा है हमें दे दो सारा TOVP का काम, हाँ आप लोग हट जाओ, मैं से पैसे नहीं चाहिए, मैं लाऊंगा। तो GBC ने कहा माफ करना भैया, ये तो प्रभुपाद जी का प्रोग्राम है, तेरा प्रोग्राम है, तुझे नहीं कहा। जिसको प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार अनुमोदित किया है वो तो वरिष्ठ भाई। तो कहने का मतलब भक्ति का तत्व हटना नहीं चाहिए, इच्छा और द्वेष के कारण अलग बन रहा है तो आसार होता है। ये भौतिकता का प्रोग्राम होता है, आध्यात्मिकता का प्रोग्राम नहीं। उसमें तो लोगों की भक्ति, श्री प्रभुपाद पर विश्वास और सारा जीवन कैसे न्योछावर करते हैं, इस पर बनता है। अपने जीवन की आहुति यानी कि अपने ये गुण कर्म के अनुसार जो विभाग है ना, वो गुण और कर्म भगवान की प्रीति के लिए लगाओ, वो भक्ति हो जाएगी। हाँ, नहीं तो सभी 3 गुणों से बंधे हैं। जब व्यासदेव को नारद मुनि ने कहा तूने जगत का क्या कल्याण किया, 1 वेद के 4 वेद बनाए, 4 वेद के अनुरूप उनके उपनिषद इत्यादि बनाए, हाँ, और इतने इतिहास लिखे और पुराण लिखे, हाँ, जिसकी शक्ति द्वारा तूने ये जन कल्याण के लिए ये सारी रचना की है, लेकिन इसमें वास्तविक जन कल्याण कहाँ है? हाँ? 3 गुणों का समावेश होने के कारण आप माया को ही पोषित करोगे। माया त्रिगुणात्मक माया, हमें तो माया से छूटना है। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों को पता चले कि भैया ये भक्ति करते हम मुक्ति नहीं चाहेंगे, मुक्ति तो चाहेंगे, पर मुक्ति करते विशुद्ध भक्ति से हमें प्राप्त होगी, जो भगवत प्रेम प्राप्त करना है। प्रेमोपमार्थ महान करके चैतन्य महाप्रभु ने हमने आदेश दिया है। ये पंचम पुरुषार्थ है, मोक्ष से भी ऊपर है, लेकिन बिना भक्ति नहीं कर पाओगे। तो भक्ति करने के लिए हमें ये 3 गुणों से तो छूटना ही पड़ेगा। जब संधि करने का विषय आता है, रजोगुणी और तमोगुणी और सत्वगुणी 3 गुणों, तो देवताओं में भी थोड़े थोड़े होते हैं, पर लेकिन सत्वगुण ज्यादा होता है, इसलिए दैव योनि कहलाती है। और भगवान ने भी मंजूरी दी है कि चलो भाई मेरी ओर से सारी कार्यवाही आप करो। ये संसार को चलाने में आंतरिक संचालन आपका है, बाहर का संचालन जीव करता है, वो आंतरिक संचालन अपने शरीर में कभी नहीं कर सकता, चाहे कितना योग करे। रामदेव बाबा को भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सही? क्योंकि आंतरिक संचालन जीव के हाथ में नहीं है। शरीर में हम तो खा सकते हैं लेकिन पचा सकते नहीं। हाँ? खा सकते हैं, पचा सकते हैं। तो जीव तो खाने की ही बात करेगा, पचाने की बात नहीं करेगा। वो जानता भी नहीं कि पचेगा कि नहीं। हाँ? तब भगवान कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचान्यम चतुर्विधम। मैं प्राणियों के देह में जठराग्नि के रूप में, वैश्वानर नाम का जठराग्नि है, वो देवता है, वो देवता है, वो पचाएगा। वो ये मैंने रचना की है, तू नहीं पचा सकता। तो कहते हैं कि हाँ हमें तो चिकन खाना है, मुर्गी खाना है, ये खाना है, वो खाना है, गाय खाना है। अब पचाएगा कौन? तेरा बाप। हाँ, भगवान को पचाना पड़े। तो आप भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान को इतनी जबरदस्ती भी कर सकते हैं जो भगवान को मंजूर नहीं है। ये भावना रजोगुणी में भी नहीं होती तो तमोगुणी में कहाँ होगी?
राक्षस वृत्ति ऐसी होती है जो बिन जिम्मेदार भगवान के प्रति बना रखती है। तो साधुओं के परित्राण के लिए आना पड़ता है, दुष्टों का विनाश के लिए आना पड़ता है। ऐसे राक्षस लोग कौन है जो खुद का तो नाश करते, दूसरों का भी नाश करते। सही, तो हमें भगवान का अर्पित करे जो भोग होता है तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, सारे मनुष्य के क्लेश दुख इत्यादि मिल जाएंगे यदि प्रसाद ग्रहण करता है। तो प्रसाद बनाने की भी भावना होनी चाहिए, खाने की भी भावना होनी चाहिए। यदि ठीक ढंग से खाते नहीं तो क्या होता है। शुरू में अंग्रेज लोग कोई 4 निषेध का पालन करना पड़ता है तो बेचारे जाएंगे कहाँ। प्रभुपाद जी ने प्रेम से एक बढ़िया प्रसाद बनाया। एक माता जी ने लिखा है अभी कि शुरुआत के दिनों में जब प्रभुपाद जी स्वयं पकाते थे और खिलाते थे, एक आदमी 12 रोटी खाता था। हाँ, 1-2 रोटी से काम नहीं चलता है। हाँ, शुरू में तो मंगल आरती करते हैं और आते हैं, बाद में जैसे मंगल आरती खत्म हो गई तो बगल की वो जो डोनट शॉप होती है वहाँ कॉफी और डोनट खा लेते थे। प्रभुपाद जी ने सहन तो किया, लेकिन काफी प्रेम से समझाया कि भैया ये तमोगुणी पदार्थ खाने की क्या आवश्यकता है, प्रेम से बनाओ, प्रेम से खिलाओ। क्या ये लोग प्रेम से डोनट बनाते हैं, प्रेम से खिलाते हैं? यदि ये हो तो पैसे की क्या आवश्यकता हो। आप प्रसाद खाओ, क्या प्रसाद का कोई चार्ज होता है? नहीं, लेकिन आप प्रेम भी पाओगे जिसके द्वारा आपकी मुक्ति हो जाए। भरपेट खाओ। जब प्रभुपाद जी का जय जयकार करते कि आप भरपेट खाओ, जय प्रभुपाद करते, आप लोग जाओगे ही भगवान के धाम, पेट पर अपना पेट घिसकते जाओगे। क्रोलिंग ऑन योर स्टमक। जाओगे भगवान की तरफ, लेकिन जाओगे सही। प्रसाद का सेवन इतना है, सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, ये सब हट जाता है। तो जीव आया है और 3 गुणों वाली माया में फंसा है, और भगवान फंसते नहीं तो क्यों फंसा? भगवान कहते हैं चालाकी तो यहाँ रखनी चाहिए। तो यहाँ ज्यादातर रजोगुणी और तमोगुणी वातावरण है, सत्वगुणी वातावरण तो यहाँ ही आपको मिलेगा। सही, आओ, तो शायद जबरदस्ती से सारा मकान भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि वैसे जगह तो देंगे नहीं। यहाँ किराया देते हैं तो हो सकता है ऐसा जोग अनुजोग कुछ हो जाए, लेकिन सारी दुनिया भगवान की भक्ति से, और भक्ति में प्रेममयी सेवा को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति अकेला शब्द नहीं, प्रेममयी सेवा को भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति यदि प्रेम हो तो भगवान का कहा मानोगे और उसके अनुसार काम करोगे, वो भक्ति होगी। चाहे कोई भी हो, कोई भी कैसा भी काम हो, चाहे वो काम रजोगुणी क्यों ना हो, सत्वगुणी क्यों ना हो, तमोगुणी क्यों ना हो। पाताल लोक में तमोगुण ज्यादा होता है, लेकिन यमराज भी तो वहां रहते हैं। ये यमराज कितने चालाकी से रहते हैं। यमराज तो भक्ति के प्रणेता हैं। और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। वो कभी तमोगुण यानी कि जहाँ सिर्फ यातनाएं दुष्ट लोग को दी जाती हैं
और ये भक्ति के प्रणेता है। इनका काम भी देखो कितना विरोधाभासी लगता है, पर भगवान की आज्ञा से काम कर रहे हैं, इसलिए अपने काम में लपेटते नहीं वो। लेकिन 3 प्रकार के कार्य होते हैं, तो तामसिक कार्य भी होता है। हम यदि तामसिक कार्य होते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार तामसिक करेंगे, लेकिन यमराज का स्वभाव तामसिक नहीं है, वो तो विशुद्ध भक्त है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो जो तीनों गुणों से ऊपर है, तो उसे कोई भी काम देखो वो भगवान की प्रीति के लिए ही करेगा। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में हमें वही सिखा, यम क्रोध काम प्रणय सहजादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव से विभावे सांचित्यम तदृशम तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषम। ये काम क्रोध वो भी भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, लेकिन चालाकी ये क्या हमें लपेट के नहीं करना है। ये कार्य ऐसा है दूसरों के। हमने हम बेंगलोर से ही आए, तो बेंगलोर में आईसीसी में व्हाइट फील्ड में बड़ा मंदिर करने के लिए इंद्रदुम्न महाराज और हम दोनों साथ में थे। इंद्रदुम्न महाराज फंड रेजिंग के लिए उत्साह देते थे। एक कहानी सुनाई, श्रीरंगम में एक काफी समय पहले, रामानुज के पहले यमुनाचार्य थे, यमुनाचार्य के पहले अलवर्स थे। तो इन्होंने सोचा कि भगवान के अनुरूप मंदिर होना चाहिए, और मंदिर नहीं है, मंदिर बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने सोचा कि चलो मंदिर भी फटाफट तैयार तो होना ही है, लेकिन हम राह नहीं देखेंगे। उन्होंने जो चोर डाकू इत्यादि थे सबको इकट्ठा किया, जाओ लूट के आओ, लूट के आओ और भगवान का मंदिर बनाएंगे। शिव मंगल अलवार थे, तो लूट के आओ। अब लूटना काम तो तमोगुणी है, वो शायद जोरावर भी होंगे, पावरफुल होंगे, तो वो रजोगुणी भी होंगे, लेकिन ये दोनों कमजोर गुण को उपयोग करें और भगवान का मंदिर बनाए। बाद में उन्होंने सोचा कि चलो इन लोगों को भी छुट्टी दे दो। कैसे? उनका क्या, आपको भी अपना हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो कावेरी नदी थी ना, कौन सी नदी? ओके, थैंक यू। मैंने बोला कोई रेफरेंस बता रहा है। हरे कृष्ण, प्लीज। उन्होंने एक नाव में छेद रखा, और कहा के सामने पार जो द्वीप है वहाँ मैंने सारा संग्रह किया है, जाओ आप बांटो, ले लो। लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि नाव डूब गई और सबको मार के गई। तो ऐसी प्रवृत्ति में साधु लोग को क्या जाना आवश्यक है। साधु लोग यानी मुक्त पुरुष होने चाहिए। झूठा मूठा दावा करे तो कुछ कर नहीं पाएगा, बल्कि वो लपेटेगा। 3 गुण इतने जबरदस्त हैं। दैवी है सा गुणमयी, ये 3 गुण भी दैवी हैं, सत्व रज और तमोगुण। इसमें से छूट पाना अकेले का काम नहीं है। जो छूटा हुआ है वही दूसरे को छोड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी जो छूटे हुए हैं, इन्होंने सबको उत्तेजित किया कि आप भी छूटो। छोड़, आप भी छूटोगे। प्रभुपाद जी का आश्रय ऐसा है कि 3 गुणों से छूटना है, तभी हम पराभक्ति कर पाएंगे,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समत सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभेत पराम। तो यहाँ ईर्ष्या का वातावरण है बाहर, हाँ? तो लेकिन भगवान की इच्छा के अनुरूप रहकर हम यदि अपनी कार्य, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए यहाँ भी हम जी सकते हैं। तो भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा समांतर होती है, तो उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना होता है। तो अवश्य ये जो श्लोक है, 3 गुणों से छूटना तो भारी पड़ेगा, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए यदि जो कोई आगे बढ़ता है तो तीनों गुणों को लांघ सकता है, वो भक्ति ही कर सकती है। तो किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। बोलो। प्रश्न हमारे पास 2 प्रश्न है मेरे पास। 2 प्रश्न? अरे एक तो पूछो, 2 साथ में मत पूछो। एक क्वेश्चन है जो आप प्रसादम के बारे में जो बोला, हमारा बहुत सारा डिब्यूटी है इधर प्रसादम लेता है, बाहर रहता है, सौदावान है, मैंने है, कुछ वक्त है ये कंप्लेन करता है हमेशा प्रसाद के बारे में, बस क्वालिटी अच्छे नहीं है, पूरा रेट होता है, फुल करता है, कुछ टूट हो जाता है। तो ये लोग का क्या हो, वो लोग प्रसाद समझते नहीं फिर, शायद सोचते हैं होटल है, ऐसा भी उनका भाव आता है। इसमें कुछ उन्नति होना उनको प्रसादम के बारे में। संस्था व्यक्ति को तीनों गुणों से छूटने का कह सकती है, लेकिन व्यक्ति ही अपने गुणों के अनुसार संस्था को 3 गुणों से छूटने का कहेगा तो उल्टा काम होगा। संस्था तो भौतिक होती है, लेकिन संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन संस्था में जो प्राण है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। जो प्राण आपको भी मिलेगा और संस्था को भी मिलेगा। प्राण 3 गुणों से परे होते हैं। लाइट के ऑफ किया। संस्था 3 गुणों से परे है। नहीं, भक्ति 3 गुणों से परे है। संस्था भौतिक रूप होता है। प्रभुपाद कहते इस्कॉन इज माई बॉडी, कहते हैं इस्कॉन इज माई बॉडी। तो बॉडी की भी मर्यादा होती है, बॉडी की मर्यादा होती है। यदि इसमें जो प्राण बनाए रखे वो भक्ति का प्राण हो, भक्ति के लिए हो, तो संस्था 10,000 साल तक टिकेगी, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो लेकिन 10,000 के बाद पे कलयुग अपना प्रभाव बनाएगा, तमोगुण ज्यादा होगा। तो जितने लोग जब तक एयरलाइन काम कर रही है अधिकृतता से, तब तक तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि भैया कितनी टिकट बटी है। जो थोड़ी बटी है ज्यादा तो ही मैं बैठूंगा, कोई बटी नहीं तो मुझे बैठने की। अरे अधिकृतता देखो। दुनिया तो अपना अपना विचारों से क्या क्या नहीं कहेगी, उससे हमें आधार नहीं रखना चाहिए। अपना सिद्धांत क्या है? सिद्धांत गुरु परंपरा से चला आता है, वो बलवान होता है। इसमें हमें आलस नहीं बनाना चाहिए। उपयोग करो उसका और बुद्धिपूर्वक उपयोग करो सिद्धांत का। सब सिद्धियों का अंत को सिद्धांत कहते हैं। सही है? तो ऐसी परेशानी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं एक कोई ऐसी खोपड़ी में से निकला हुआ तुक्का है। दूसरा प्रश्न है कि हम लोग इधर एक साथ रहता है 45 डिब्यूटी, बहुत सारा नया नया डिब्यूटी आया, तो हम लोग वो लोग 1 साल 2 साल हो गए, वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो देखते हैं जो लोग वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो भट्टी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं,
वैष्णव को अपराध, वैष्णव चरण में वो पीछे बात करता है, अपराध करता है। तो हम लोग मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट तो सिद्धांत लाता है उसको आगे बढ़ना के लिए, तो उस हम टाइट करता है, टाइट बाहर निकल जाना, जैसे बाहर बहुत वक्त आना के लिए चाहता है लेकिन उनके लिए जगह नहीं है, हम इनसे निकाल लेके दूसरा पे लेके आना, इसमें हम लोग कुछ अपराध होगा। सुनो, अपराध अवमानना करने से होता है। संस्था में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन संस्था के नियमों के अनुसार वो चले तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन कोई यदि जानता नहीं है कि इसे अपराध कहते हैं, तो जो प्रचारक है उसकी तो जिम्मेदारी होती है कि भैया ये अपराध कहलाता है, ये आपकी भक्ति को आगे नहीं बढ़ाएगा। यदि आप यहाँ रहोगे तो दूसरों की भक्ति भी दूषित करोगे। बहुत सारे फल जो होते हैं, एक सड़ा हुआ फल है तो दूसरे को भी सड़ाएगा। तो ऐसे प्रेम पूर्वक समझाना होता है, नहीं कि मारो काटो और फेंको। नहीं, प्रभुपाद जी का रुख कैसा था, ऐसे भी आते थे। कई भक्त लोग 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते थे तो वो ब्लूप हो जाते हैं। ब्लूप होना यानी उड़ जाता है, बलून कैसा हवा निकल जाती है तो ब्लूपिंग कहते हैं। तो उसमें भक्ति की हवा निकल गई तो फंस निकल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हमने एक सेंटर छोड़ा, वो दूसरे सेंटर में जाते हैं कि यहाँ तो अपनी कोई चलेगी, प्रसाद तो मिलेगा, आता है पर लेकिन ये जब ये सुधरेगा नहीं तब रुकेगा नहीं तो भागना ही पड़ता है। हाँ, तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में कोई जाता है तो पहले पूछता है कि भाई ये तुम्हारे सेंटर से आए, वो कौन सा है, कैसा है, बता दो। पूछना पड़ता है, तब उसको कहते हैं ए देख तूने ये किया था वहाँ, इसलिए वहाँ से तुझे हटना पड़ा, यहाँ भी ये करेगा तो तू यहाँ से भी हटेगा। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, माफ करो। ये तो मौका तो देना चाहिए। सही, तो जिसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से आप्लवित है तो भक्तों के प्रति भी आप्लवित होना चाहिए। वहाँ भेदभाव क्यों करें? आप अपना भगवान का प्रेम बताओ। आप यदि हैं तो आपका भी विकास भगवान के प्रेम के रूप में होना है, तब आप देखने के लिए समांतर बन जाओगे, विरोधाभासी नहीं तो अब हमारे में ही विरोधाभास है तो हम दूसरों की आलोचना कैसे कर सकते हैं? तो ये ख्याल में रखना चाहिए। बहुत सारी सिस्टम हैं, बाहर की सिस्टम जब अंदर लाकर हम सेवा करते हैं तो हमेशा काम में नहीं आती। प्रभुपाद जी का उदाहरण, उन्होंने बहुत सारे लोग जो ग्रुप हो गए उनको सहन किया है, कभी इनका बुरा नहीं बोला। ये लड़का तो बहुत अच्छा था, बहुत काफी सेवा करता था, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो वापस आए। ये भक्ति की महिमा बताते हैं, ऐसा रुख रखना चाहिए। हम यदि भक्ति में मैच्योर नहीं है तो दुनियादारी भी जानते नहीं, दुनियादारी तो बहुत कपटी है। वहाँ की रीत रस्म हम मंदिर में अपना नहीं सकते, नहीं तो किसी को भी नहीं रख पाओगे आप। यहाँ इतने सारे हैं, अरे कोई एप्पल खराब आ जाता है तो उसको कहो भैया बाहर जा, नहीं तो तेरा एप्पल का जो सड़ा हुआ भाग है मैं काट लेता हूँ बाद में हुआ। सही ना? ये तो दुर्गंध मारेगा सभी। तो ये सब भक्ति में हम कितने एडवांस हो रहे हैं उसके आधार पर है। नवसिखिया लोग नहीं, वहाँ सीनियर लोगों की आवश्यकता है। और इसी तरह आप भी रेगुलर होकर सीनियर बन जाओ,
हाँ, दीक्षा हो गई है? हैं? जय। यही रुख रखने के लिए आपको दीक्षा दी गई है। दिक यानी देखना, अना इक्षु, इक्षु यानी देखना, दिक यानी दिशा। आपको दीक्षा दिखाई जाती है भी कि भगवान की ओर कौन सी दीक्षा है। दीक्षा काले आत्मसात करना होता है, और हमें इतनी देर लगती है। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तन पाए कृष्ण पदे फिरे। बहुत टाइम क्यों लगे? क्योंकि त्रिगुणात्मक माया में हमारे में भी सड़ा होता है, तो एक सड़ा दूसरे सड़े को निकाल नहीं सकता। हमें पहले अपने सड़े को निकालना होता है, बाद में दूसरे को मदद करनी होती है ना। बहुत सीधा साधा है। उसके लिए बहुत सारे संविधान, एजेंडा पास करना, ये ना 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 बाबा। आप लाख ऐसे प्रयत्न करो, एक कॉर्पोरेट जैसा बिजनेस इस्कॉन में चालू कर दो, फिर भी नहीं। ये वॉलंटरी संस्था है, ये जबरदस्ती संस्था नहीं है ना। प्रेम वॉलंटरी होता है या जबरदस्ती से होता है? ये मुसलमान शायद जबरदस्ती करते हैं, तो आप पर ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए चांट हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। Some books, if somebody wants books, we can give. You can give. ओके। तो महाराज के हाथ से अगर किसी को भगवत गीता या कुछ बुक्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, चारों प्रभु। हाँ, अगर गीता चाहिए शिल प्रभुपाद बुक्स, महाराज मिलेगा, महाराज का आशीर्वाद। हाँ, प्रश्न है? हाँ, प्रश्न जल्दी पूछो। जय प्रभु जी। आप इधर आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, आपके चरण कमल में मैं दंडवत करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि 3 गुण के ऊपर ही भक्ति जैसा स्टार्ट होता है, तो वो 3 गुण के ऊपर जैसे आपने बताया, वो त्रिगुणातीत होने के लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या कार्यकलाप होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज होना चाहिए? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समत सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति। 3 चीज, और तभी ही ब्रह्मभूत कहलाओगे। उस पर ही मेहनत करनी है। हमें मुफ्त की चिंता क्यों करनी चाहिए? नहीं करो। ये भी चिंता करता था, मुफ्त की है ना। न सोचती न कांक्षती, ऐसी बात के कहने मुझे ये इच्छा है, ये इच्छा, मैं इसको में आकर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अरे मैं ऐसा आशीर्वाद मांगूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाए, बाद में मैं चला जाऊंगा। न कांक्षती एंड समस्त सर्वेषु भूतेषु। समता कहाँ है? इनका नाक तो छोटा है, इनका बड़ा लंबा है, इनके बाल सफेद हैं, इनको तो बाल है ही नहीं, ये सब भेदभाव क्यों? समस्त सर्वेषु भूतेषु। जीव समान है, शरीर समान नहीं होता। आत्मा समान होती है। हम भी इग्नोरेंट थे, थोड़ी जानकारी प्राप्त, बहुत सारे इग्नोरेंट जानकारी तो प्राप्त करो तो समानता आएगी ना। तो ऐसा व्यवहार समस्त सर्वेषु भूतेषु, एक एक प्राणी में आत्मा की समता से एक सबको सरीखा समझ, किसी पर द्वेष भाव नहीं करो। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो शास्त्र पढ़ा है वो पंडित कहलाता है, तो उसे समदर्शी तो होना ही चाहिए। एक ब्राह्मण में, एक कुत्ता में, एक हाथी में, एक चांडाल में, सबको एक सरीखा है, समझने की आवश्यकता होती। लेकिन हर समय वो समानता रख पाना तो हम जैसे के लिए तो... अरे भाई, इसलिए मुक्त नहीं होते। मुक्ति
की दूर रह जाती है या सिर्फ मन में रहती है, व्यवहार में नहीं आती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज की जय। तो आप लोग ये कोई बुक्स कोई लेना चाहते थे, वो बुक्स दे दो, बुक्स दे दो। पेन भी दे देना। पेन किसी को बुक्स चाहिए? पेन इसके अंदर है, चाबी दो। शिला प्रभुपाद का बुक आ जाओ प्रभु। शिला प्रभुपाद का बुक बांग्ला की हिंदी? प्रभु प्रभु उसको खोलिए ना, तो खोलिए। सर प्रभु प्रसाद भी देना है। बुक्स किसका किसका चाहिए, जल्दी ले लो। आ जाओ। ओके, प्रसाद देते पहले। हाँ पहले प्रसाद प्रभु आइए। बोला हाँ जो आई प्रभु चारू प्रभु मैं बोला था ना, बोलते रखो। माता जी श्लोक को पहले लेने दो। चलो माता जी श्लोक को पहले लेना। इसको भगवत गीता प्रभुपाद का बुक। उधर भी है ना। पहले तो काजू बादाम इत्यादि देते थे। सही ना? महाराज वो उससे ये अच्छा है ना, ये हैंडमेड है। भक्तों ने बनाया। भक्तों ने बनाया। काजू बादाम थोड़े बताते, भक्त थोड़े बनाते, भक्त भी नहीं बनाते। वो तो प्रकृति की देन थी। आपको तो शायद महाराज जिस मार्केट के बारे में याद है पड़ेगा। अरे बाबा। प्रसाद आप किसको लेने का? प्रसाद प्रसाद दीजिए, प्रसाद प्रसाद। और कोई बाकी है? जो बाकी है आगे आइए। हिंदी की बांग्ला। जो बाकी है आगे आइए। हल्का है, भारी होता है। ले लिया। माता जी आप लोग लिया? नहीं भी नहीं। बुक्स दिसे जो ये मार्केट से लिया था वही क्या चेंज कर दिया? आप लोग ने ले लिया? नहीं लिया है। बाकी रहा, आप दोबारा भी आ सकते हैं। ओके, अब ये बुक्स दे दो, बुक्स दे दो। दोबारा एक ले लेते।
ये अच्छी है। प्रभुपाद का बुक है, प्रभुपाद का बुक। या तो अंग्रेजी में लिखता हूँ। हाँ नहीं करेक्ट। आ जाओ, किसको चाहिए? आगे आ जाओ, आगे। प्रभुपाद बुक है। आपका दुटो तीनटे बुक है। संडे में महाराज का क्लास होगा। एक भी किताब मेरी जो कोई पढ़ेगा बहुमुक्ति पाएगा। हरी हरी बोल। आज प्रसाद भी है और प्रभुपाद का बुक्स भी है और महाराज का संडे को भी क्लास होगा। महाराज तो एमएन के हॉल में है, संडे को जो हॉल में है प्रोग्राम, तो महाराज का और एक क्लास है। कृपया करके आप लोग आइए। हाँ किसको चाहिए प्रभुपाद का बुक? बंधु चिन्ह